Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with the chapter 10 Characteristics of Living Things, and that would be the last chapter of your syllabus, and that too as a part of your revision. Right, so let's get started. There are a variety of plants and animals that exist on the earth in different habits and habitat, but they have one thing in common, that is life processes. All of them undergo certain life processes to stay alive. And what makes the living things or the living beings different from the non-living? So there are some points given in your books that actually makes or helps us to distinguish between the living and the non-living. Some of the points are: living organisms have a cellular organization. They all possess chemicals of life. They all are engaged in various life processes such as nutrition, respiration, excretion, and reproduction. They show movement, they grow and develop, they respond to stimuli, they have a different or they have a definite lifespan. Right, now let's get started with the cellular organization. So what is a cell? Cell is the basic structural and functional unit of life, and cell is so small that in a single full stop a millions of cell can fit. So cell can be viewed only under a microscope because it's very tiny, it's very small, and you cannot see with the naked eyes. So the organism that have only one cell or that are single cell are known as unicellular organisms, and the example of such organisms are amoeba, paramecium, and chlamydomonas. Right, these unicellular organisms are so small that we cannot see them with the naked eyes, and that's why they are known as microscopic animals. Now, what are multicellular organisms? The organisms that are made up of more than one cell are known as multicellular organisms. The examples are ants, houseflies, lizards, cats, dogs, etc. All plants, and all of them are made up of multiple cells. Right, so they are known as multicellular organisms. Now let's deal with this topic in हिंदी. हमने अपने आसपास बहुत सारे किस्म के प्लांट्स, एनिमल्स और अलग अलग क्रीचर्स देखे हैं. ठीक है, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक ज़िंदा चीज़ को, यानी कि एक लिविंग चीज़ को नॉन लिविंग चीज़ से अलग करती है? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं. वो हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो अगर सेल से मिलकर बना हुआ है तो वो लिविंग है, और अगर उसकी सेल्स के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो लिविंग है, और अगर वो बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन ये सारे कर रहा है तो भी वो लिविंग है. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मोशन शो करते हैं, वो डेवलप करते हैं, वो ग्रो करते हैं. वो अगर बाहर से कोई स्टिमुलस उनको दिया जाए तो उस पर रिएक्ट करते हैं, और उनका एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, निश्चित ज़िंदगी गुजारने का वक्त होता है. अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. राइट, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक सेल होता है. सेल मतलब होता है जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, उसको हम सेल कहते हैं. यानी कि बेसिक मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मेन, और स्ट्रक्चरल यानी कि जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई. फंक्शन यानी कि जिसमें फंक्शन होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी एक्ट करती है, तो उसको हम सेल कहते हैं. और सेल इतनी छोटी होती हैं कि जो एक हम फुल स्टॉप लगते हैं ना, लाइन के बाद जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर हम उस फुल स्टॉप में सेल्स को फिट करें तो मिलियंस ऑफ सेल फिट हो जाएंगे, खरबों सेल उसके अंदर फिट हो जाएंगी. अब सेल दो तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं कि जिनकी जो पूरी बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, और क्योंकि सेल इतनी छोटी होती है तो इसलिए उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है, तो वो भी जाहिर सी बात है छोटे होंगे. छोटे होंगे तो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, और वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. इनके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमिनस और यूग्लिना. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो बहुत सारी सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं वो हैं हाउस फ्लाई, एंट, लिजर्ड, हम, कुत्ते, बिल्ली, प्लांट्स जितने भी हैं हम सब लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? Look, animals and plants, we all are made up of various kind of cells, and these cells are continuously undergoing some of the chemical activities, and to sustain those chemical activities we need energy, and this energy is given to us
in the form of food, right? And with the help of this food only we grow, we repair, we maintain ourselves, right? Now the thing is that plant produce their own food, matlab they get their own energy from the sunlight directly, and in return they process some of the foods, and that food is taken by us, which actually provide us the energy to do all these activities, right? So let's deal with this topic in Hindi. एक भी किसी भी प्लांट या एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए ना न्यूट्रिशन यानी कि फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. हमने पहले ही एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो खाना बनाते हैं जिसमें वो डायरेक्ट सन की जो एनर्जी है उसको फिक्स करते हैं खाने में, और उस खाने को यूटिलाइज़ करते हैं, बचा हुआ खाना स्टोर करते हैं. जो खाना वो स्टोर करते हैं उस खाने को हम खाते हैं. अब उस खाने को हमें खाने के बाद जो सन की एनर्जी है वो प्लांट के ज़रिए हमारे अंदर आ जाती है. फिर वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए. किस तरह की एक्टिविटीज़? जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, आप लंबे हो रहे हो, आपके बाल ग्रो कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. आप गिर गए, आपको चोट लगी, आपकी बॉडी खुद ठीक करती है ना उसको. वो खुद क्यों ठीक करती है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है. तो इस एनर्जी को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट. अब हम बात करते हैं, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है. अगर हम बात करें कि एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई हुई है बिल्कुल लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, वो है कि बैक्टीरियल सेल को हम कैसे देखें. ये योगर्ट जो होती है ना, दही, योगर्ट का मतलब होता है दही. उस दही का अगर हम एक ड्रॉप लेके स्लाइड पे डाल दें, ठीक है, और उसके ऊपर स्टेन करें यानी कि उसको कलर करें, किससे? एक कलर आता है स्पेशल काइंड का, क्रिस्टल वायलेट. अब क्रिस्टल वायलेट की वजह से क्या होता है कि क्योंकि वाइट में हमें कुछ दिखता नहीं है, तो अगर वो कलर्ड हो जाएंगी सेल्स तो हम उन्हें देख पाएंगे. तो हम देखेंगे उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी सेल्स हमें दिख रही हैं. वो सेल्स कुछ नहीं, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं. Respiration is a process, and this process is shown by all the living organism. Now respiration is of two types, that is external respiration and internal respiration. What is external respiration? External respiration is simply the exchange of gases, that is we take in the oxygen and we release out the carbon dioxide. So this exchange of gases in the environment is known as the external respiration. Now what is internal respiration? Internal respiration is basically the utilization of this intake of the oxygen for cellular respiration. And what is cellular respiration? Cellular respiration is the breakdown of the food within the cells to release the energy. And why do we need that energy? We need that energy to work, right, to perform various functions, whether consciously or subconsciously. We need that energy to perform various kinds of function, and this energy is provided basically by the cellular respiration, and this cellular respiration is known as the internal respiration itself. Now this internal respiration is performed by all the living organism present on the earth, be it plant, be it animal, be it amphibians, be it fishes, be it birds. Everyone perform this respiration. Internal respiration is same in all the living organism, but external respiration might vary. Why? Because we have different organs for the external respiration. For an example, leaves have stomata. With the help of the stomata they exchange gases. Fishes have gills. With the help of gills they take the exchange of the gases. Frogs have moist skin. Amphibians, that is frog comes under amphibians. Amphibians respire through the lungs and through the moist skin in the water, and with the help of lungs on the land. And the insects, the various grasshoppers and the arthropods, they respire with the help of the small openings called as spiracles that are present on the side of their bodies. Now what is excretion? Like all the other processes, excretion is a type of process by virtue of which the body eliminates the waste product to maintain a constant environment inside the body, right? Because waste products are of no use to us, and if they get deposited in our body they become toxic, right? And how are these waste products produced? They are produced by the method of various processes, that is digestion and respiration. Now when proteins are broken down into the body, the ammonia, urea and uric acids are produced. So these ammonia and uric acids are eliminated through the urine from our body, and carbon dioxide, which is produced as a waste product during respiration, is removed out through the help of nostrils. Now the products of digestion, that is the undigested food, is eliminated with the help of the feces, and extra salt gets eliminated itself in the form of the sweat. Plant also produce waste material, but since the breaking down of substances is much smaller than in animals, the waste produced is of very less quantity, right? This is the main reason for plant not having the special kind of structures to eliminate the
their waste. Right now the plant also produce carbon dioxide as waste product, and it is also given out, but since the byproduct is the oxygen, so it sorts of compensates as compared to the us. Now the next part is that the plants produce various kinds of gums, resins and latex that is actually given out by them, and you can actually see the resin coming out of a tree, and that latex is used for very specific purposes in laboratories also. In addition to this, plants get rid of the excess water with the help of the stomata, and the process of getting rid of the excess water is known as the transpiration. And the waste products of the plants are stored in the leaves that are old or that are wilted, and as a result, when the leaf falls, the waste products or the waste material also fall off. Now let's deal with this topic in Hindi. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है सांस लेने वाले प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन दो तरह से हो सकता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि हम एनवायरनमेंट से गैसेस ले रहे हैं और एनवायरनमेंट को गैसेस दे रहे हैं. इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी का इंटरनल कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. हम ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में. इस सिंपल से प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. अब क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम ब्रीदिंग भी होता है. अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि सेल के अंदर चलने वाला रेस्पिरेशन. तो ये क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, उसकी हेल्प से हम जो खाना खाते हैं उसको है ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है. वो सेल्स के अंदर होता है, ठीक है. अब सेल्स के अंदर जब छोटे छोटे टुकड़े में बहुत ज़्यादा छोटे जो हमें दिख नहीं सकते उस तरह के टुकड़ों में जब वो फूड कट जाएगा, तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है. उस एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, कुछ यूज़ कर लेती है अभी काम करने के लिए, कुछ आगे काम करने के लिए यूज़ कर लेती है, ठीक है. ये प्रोसेस होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल सेम होता है, ठीक है. लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सभी के पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं उस चीज़ के लिए. जैसे फिशेस के पास गिल्स है, ह्यूमंस के पास लंग्स है, एम्फीबियंस के पास मॉइस्ट स्किन और लंग्स दोनों हैं, और इंसेक्ट्स के पास स्पाइरिकल्स हैं. स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं बॉडी के साइड में, ठीक है. अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की. एक्सक्रीशन क्या होता है कि हमारी बॉडी जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है उस सब वेस्ट को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि अगर जो वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट या जमा होने लगेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी जहरीली हो जाएगी और इवेंचुअली हमारी डेथ हो जाएगी. तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा रेस्पिरेशन करना और हमारा डाइजेशन करना. यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीशन. जो हमारे बाकी प्रोसेसेस होते हैं ना, डाइजेशन और रेस्पिरेशन, इनका जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, इनके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके बाहर बॉडी से निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. अब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन टूटता है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन की फॉर्म में, ठीक है. अब हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, वो भी किस तरीके से करती है? नोस्ट्रिल की हेल्प से. वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हमारी बॉडी से फेंक देती है. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं वो सारे स्वेट यानी कि पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं. और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीसिस या फिर फीकल मैटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है बॉडी से. प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे वेस्ट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि प्लांट्स को है ना बहुत ही धीरे धीरे ब्रेक डाउन, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गन्स रखें या एलिमिनेशन के प्रोसेस को ज़्यादा कैरी आउट करें. लेकिन फिर भी प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो गैसेस वेस्ट है वो निकाल देता है. अगर प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे लीफ के ऊपर पोर्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक है. और उसके बाद प्लांट्स के अंदर है ना कुछ स्टोर्ड वेस्ट होते हैं, जैसे कि गम, लेटेक्स, रेजिन. तो इन सबको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका बेसिक पर्पज़ ये प्लांट के वेस्ट होते हैं, तो उनको प्लांट से बाहर आना ही पड़ता है, वरना प्लांट डेड हो जाएगा. तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी प्लांट बाहर निकाल देता है क्रैक के थ्रू. अब क्या होता है, कुछ पत्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा जो मुरझा जाती हैं पत्तियाँ, तो उनमें क्या होता है, उन मुरझाई हुई पत्तियों में ना उनके गिरने से पहले प्लांट उनके अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर कर देता है. उससे क्या होता है कि जैसे ही पत्ती नीचे गिरती है, पत्ती पेड़ से अलग होती है, उसी के साथ वेस्ट मटेरियल भी पेड़ से अलग हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is the ability of an organism to produce its offspring or to continue its generation. It's very essential because it actually leads to the heredity and the continuation of the generation. Now it can be of three types.
that is asexual, vegetative and sexual reproduction. Asexual reproduction is carried out where the only one parent is involved, and as a result the new organism that is being produced is identical to the parent, right? It's identical to the parent, and the examples are bacterium that grows very quickly and reaches maturity, and it gets split into the two bacteria. Now next one is vegetative reproduction or vegetative propagation. Plants are stable, so they perform the asexual reproduction, but they perform the asexual reproduction by the help of various vegetative parts, that are roots, stems and leaves. Since these are vegetative parts, so the type of reproduction done by the plant is known as the vegetative reproduction or vegetative propagation. Now you must have seen that the potatoes and onion develop into new plants when outside for a long period of time. And how this happens? This happens because both of them are stem, right? And the underground stem of potato is known as tuber, and the underground stem of onion is called as bulb. And this process of the rise of the tuber and the rise of new plant from the bulb is known as the asexual reproduction in the plant or the vegetative propagation in the plant. Now let's move on to the sexual reproduction. Now sexual reproduction involves two parents to form the new individual. It is a very complex process. Why? Because it involves two parents, and as a result the offspring has the characteristics of both the parents. So it is a time taking, long and complex process as compared to the other two modes of the reproduction. So what happens? One parent, that is the male parent, produces the sperm and the female parent produces the egg. As a result the sperm and egg fertilize to form the embryo, and the embryo results into the production of a new offspring. Now this offspring can either develop in the inside of the mother body or outside of the mother body, or the animals can lay eggs or give birth to the young ones. For an example, hens lay egg, while kangaroos, cats, dogs and human beings give birth to the young ones. In plants also sexual reproduction take place, but for the sexual reproduction, the plant require flowers, and as a result the male portion of the flower combines with the female portion of the flowers and give rise to the seeds, and that seed develops into the new plant. Now let's talk about this in Hindi. रिप्रोडक्शन क्या है? अपनी जनरेशन को, यानी कि अपनी आगे वाली पीढ़ी को कंटिन्यू करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन में किसी भी एनिमल की एक एबिलिटी होती है अपने ही बेबीज़ को प्रोड्यूस करना, अपनी आगे की जनरेशन को प्रोड्यूस करना. ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो तीन तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही एक नया किस्म का रिप्रोडक्शन आता है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है. अब क्योंकि एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और एक पेरेंट से ही जीन ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगी, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होगी. तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या करता है? बहुत जल्दी ग्रो करता है और एकदम से वो मेचोरिटी पे पहुंच जाता है. जैसे ही वो मेच्योर हो जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, दो बैक्टीरिया में टूट जाता है. तो वो जो दो होती हैं वो करंट जनरेशन होती हैं, यानी कि आगे वाली जनरेशन होती है. अगर अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, तो हम प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट्स की तरह हेल्प से, यानी कि वेजिटेबल वाले पार्ट की हेल्प से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब चीज़ों से होता है. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं. आपने देखा होगा कि अगर आप अनियन और पोटैटो को बाहर रख दो फ्रिज से कुछ दिनों के लिए, तो आप देखते हो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनियन और पोटैटो होते हैं वो स्टेम होते हैं. ठीक है, अब उनमें हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटैटो से ग्रीन कलर का जो पार्ट निकलता है उसको हम ट्यूबर कहते हैं, अनियन से जो ग्रीन कलर का पार्ट निकलता है उसको हम बल्ब कहते हैं. तो ये एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के स्ट्रक्चर्स हैं इनके. पोटैटो का ट्यूबर है और अनियन का बल्ब है. ठीक है, इसी तरह से हम रोज़ के साथ भी कर सकते हैं. रोज़ के स्टेम को काट के अगर हम ज़मीन में बो दें तो उससे हमारा न्यू प्लांट इवॉल्व हो जाता है. अगर अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा टाइम लेता है और थोड़ा दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. क्योंकि दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जाहिर सी बात है जो भी बेबी होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो किसी एक पेरेंट से मैच नहीं करेगी, जबकि उसकी ट्रेड्स दोनों पेरेंट से मैच करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेल पेरेंट्स की तरफ से स्पर्म आते हैं, फीमेल पेरेंट की तरफ से एग आते हैं. अब ये दोनों फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बनाते हैं. फिर वो बेबी डेवलप करता है, या तो वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप करेगा या मदर की बॉडी के बाहर डेवलप करेगा. अब उसके बाद वो जब आता है तो या तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो मदर होती है, या तो वो एग ले कर देती हैं या फिर वो सीधा उनको जन्म देती हैं या बर्थ देती हैं अपने यंग वंस को. ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे हैंस
हो गई जो मुर्गी जो होती है, मुर्गियाँ वो अंडे देती हैं, और कैंगरूज, कैट, डॉग्स और ह्यूमन बींग्स हम सब क्या करते हैं, हम सब जन्म देते हैं। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। फ्लावर्स में भी सेम होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कंबाइन करके सीड बनाते हैं, फिर वो सीड न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। Movement. So we know that animals move, right? We perform movements. Cow can run, dogs can run, on almost all the movement can walk from one place to another. And some algae are there, for an example Chlamydomonas, the and Spirogera, that actually move above the water as a whole. They do not break or they do not repress themselves, but they simply move over the water, है ना. Next one is plants. So we have seen that plants are stable, they do not have legs, so how would they show movement? So they show movement in the presence of sun. Their stem shows movement. For an example, the flowers of sunflower plant change their direction to face the sun. So this is a type of movement. You are sensitive to the sun, you are facing in the direction which have sun, so that sort of shows a specific movement done by the sunflower plant here. Next one is that flower of some plants open their petals during the day but close in the evening, and the carnivorous plants also trap the insects, and for trapping the insect they actually keep their lid open and then close it. So these are some of the movements shown by the plants that actually make us believe that plants are living, right? So movement is a basic criteria for keeping anything into living or non-living things, right? Next feature or the criteria is growth and development. So how can we define growth? Growth is defined as an increase in size or the mass of an organisms. Living things grow in an organized manner, right? So the point here is that over a period of time many organisms grow in terms of number, in terms of mass, in terms of size. So that's why the growth and development is a criteria for proving an animal living or non-living, right? So these cells can undergo many changes to perform specific function, but in case of the unicellular organisms they increase only by increasing the size of the cell to a certain extent. Why? Because they are the most simplest organism. For an example, bacteria and amoeba, being the simple organisms, show very little development, but in case of the more complex organisms such as human beings, horses, banyan trees, there is much more development, which is complicated process. It also takes many years. Next feature is response to stimuli. So we know that all living things actually react to heat, light, cold, sounds, touch, etc. And anything or any change in the organism's environment that actually make him react is known as the stimulus. And the reaction of the organism in response to the stimulus is considered to be the response. So actually it is the behavior of the organism that is considered as the response. For an example, if a dog is feeling cold, so it will move to a warmer place. It won't stay near snow or the breeze, rather it will move to a warmer place. Plants also show the response to a stimulus. Why? And this type of response is known as tropism. Why do plants so respond? Because they are living. Simple. Since they are living, so they are showing the response to the stimulus. Now this response in case of the plants is known as tropism. That is the movement of the plants in the direction of stimulus is known as the tropism. So how they show response? They show response by moving into the direction of the stimulus, or by moving the plant part into the direction of the stimulus. Now there are two tropism that are being mentioned in your book, that is phototropism and geotropism. Phototropism is the movement of the plant towards the light or the sunlight or the light source, and the movement of the roots into the soil or in the direction of the gravity is known as the geotropism. Now next one is Gnosticism. Gnosticism is a sort of closing of the leaves by some plants so that no one can touch them, or when anyone touches the leaves of the plant they close their leaves. So this type of behavior is known as the Gnosticism. And there are some flowers also that bloom during the day, and there are some that bloom during the night. So let's talk about these topics in Hindi. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द मूवमेंट. तो मूवमेंट क्या होता है कि हमें पता है मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो किसी भी चीज़ के ज़िंदा होने का सबूत देता है. तो हम जानते हैं कि एनिमल्स जैसे कुत्ता, बिल्ली या ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग क्या अपने पैरों पे चल सकते हैं, तो हम मूवमेंट शो करते हैं, हमारा मूवमेंट दिखता है. लेकिन प्लांट भी मूवमेंट शो करता है क्योंकि वो लिविंग है, लेकिन उनका मूवमेंट दिखता नहीं है. वो किस तरह से शो करते हैं, अगर आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा तब दिखेगा. जैसे आप सनफ्लावर का फ्लावर लो,
सनफ्लावर जो है वो अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी डायरेक्शन सन की तरफ फेस करता है। क्यों क्यों सन की तरफ वो मूव करता है? क्यों? ये एक तरह का मूवमेंट हुआ ना कि वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक तरह का मूवमेंट है जो प्लांट शो करता है। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ कुछ फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ हैं ना, वो सनलाइट के आने पे खुलती हैं और रात के टाइम पे बंद हो जाती हैं। तो सनलाइट की वजह से ये मूवमेंट प्लांट शो कर रहा है ना, तो ये एक तरह के मूवमेंट हुआ। एक कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो कि अपने ढक्कन को बंद करते हैं। उनका मतलब घड़े जैसा उनकी पत्तियाँ होती हैं, उसमें वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और ढक्कन बंद करते हैं, तो ये भी मूवमेंट। तो इस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि ज़िंदा हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ को अगर हम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो ग्रोथ का मतलब होता है कि साइज़ में इंक्रीज़ होना या फिर आपकी वज़न में इंक्रीज़ होना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइज़ या फिर वेट बढ़ना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स है ना, ग्रो करती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ग्रो करती हैं कि हाथ इतना ही बढ़ना है। आप अगर ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लो, हाथ इतना ही बढ़ना है, पैर इतना, ऐसा तुमने कहीं नहीं देखा होगा कि राइट हैंड तो छोटा है लेकिन लेफ्ट हैंड बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, कुछ देर में शो करते हैं, कुछ जल्दी शो करते हैं। तो ग्रोथ करने के लिए ना हमें बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है। हार्मोनल हो गए, फिज़िकल हो गए, ठीक है, जेनेटिकल हो गए, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। तो ग्रोथ के लिए हमें वो सारे चेंजेस को अंडरगो करना पड़ता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल तो होती है उनके पास, एक सेल में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक सेल में क्या होता है, वो सिर्फ सेल के साइज़ को ग्रो करने को ही उनको ग्रोथ कहते हैं। तो उनके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिर्फ साइज़ का बढ़ना है, और हमारे लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइज़, मास, इंटेलिजेंस, सब चीज़ों का बढ़ना हुआ है। तो इस डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप चेंज हो जाती है, मैच्योरिटी बन जाती है, जितनी भी सेल्स होती हैं उनके फंक्शंस चेंज होने लगते हैं, उनके रोल्स के हिसाब से उनको फंक्शन असाइन किए जाने लगते हैं। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, तो इनमें बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है। मतलब ये ऑलमोस्ट सेम स्टेजेस होती हैं इनकी, सारे मेचोरिटी की स्टेज में, अंडर मेच्योर, प्री मेच्योर, हर एक चीज़ में इनकी सेम स्टेजेस होती हैं, क्योंकि इनमें बहुत कम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, हॉर्स हो गया, बैनियन ट्री, तो इन सब में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है और बहुत साल लग जाते हैं। आप खुद देखो, आप जब ग्रो करते हो, आप कितने छोटे बच्चे होते हो, उससे आप कितने अडल्ट मैन या वुमेन बन जाते हो। ठीक है, तो कितने साल लगते हैं? कम से कम 20-22 साल लगते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बात करते हैं स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। तो स्टिमुलाई क्या होता है? किसी भी एनवायरनमेंट में एक सडन चेंज होना, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म उस चेंज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे, इसको हम कहते हैं स्टिम्युलस। ठीक है, स्टिम्युलस कुछ भी हो सकता है कि गर्मी, ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा लाइट, और किसी ने ज़ोर से टच किया, किसी ने ज़ोर से मारा, ये सारी चीज़ें स्टिम्युलस के अंडर में आती हैं। ठीक है, और स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिज्म बिहेवियर शो करता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे आपको किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा, ठीक है, तो थप्पड़ मारने के बाद क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? या तो रोगे या चिल्लाओगे। ठीक है, तो थप्पड़ मारना हुआ स्टिम्युलस और रोना चिल्लाना हुआ रिस्पॉन्स। समझ आ गया? तो अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट है ना शो करता है, लेकिन प्लांट है ना मूवमेंट शो करता है। जैसे कि प्लांट का मूवमेंट स्टिम्युलस की डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। ठीक है, इस तरीके से वो अपना स्टिम्युलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है। तो ट्रॉपिज्म में फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है और जियोट्रॉपिज्म हो सकता है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि प्लांट का सनलाइट की तरफ झुक जाना, प्लांट के स्टेम का, प्लांट के तने का सनलाइट की तरफ झुक जाना, इसी को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और प्लांट की रूट का ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ बढ़ जाना, इसी को हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्यों? ग्रेविटी होता है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, याद करो हमने भी पढ़ा था फिजिक्स में। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, रूट्स है ना नीचे की तरफ पुल होती हैं, तो उस फोर्स को हम कहते हैं उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। और जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटी पुल करती है, उसको हम कहते हैं स्टिम्युलस। अब एक और वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है नेस्टिसिज्म। नेस्टिसिज्म क्या होता है कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे छुई मुई का पेड़ होता है ना, पौधा, पेड़ नहीं होता, छुई मुई का पौधा होता है, छोटा प्लांट होता है। तो वो जो पौधा होता है ना, उसको अगर तुम अपनी उंगलियाँ चला दो ना, तो उसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेस्टिसिज्म। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि दिन में ब्लूम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रात में ब्लूम करते हैं। तो अक्सर जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, वो रात में उगते हैं, रात में खिलते हैं, उगते नहीं
हैं, खिलते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ रात में खुलती हैं, और जो थोड़े ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ दिन में खुलते हैं। तो ये है ना, एक तरह से स्टिमुलस है कि रात आएगी तो हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, दिन आएगी तो हम ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स हुआ स्टिमुलस के अकॉर्डिंग्स में। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. So lifespan is basically a period of time for which the human or the organism is on the earth, right? It is the average period of time that an organism is expected to live. So the lifespan varies from organism to organism. For an example, some bacteria, insects have only couple of hours to live, whereas some animals like us or elephants, we have an average lifespan of around 80 years. Elephants have 70 years, and now the lifespan of humans have become around 85 to 90 years, right? And some of the plants like bristlecone pine tree has the longest lifespan, like around 5500 years, and in the end every organisms need to die, and this is how it completes its life cycle. So let's deal with this in Hindi. लाइफ स्पैन क्या होता है, कितने टाइम तक कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन. हमें नहीं पता कितने टाइम तक हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज लाइफ स्पैन होता है, ठीक है. तो ये लाइफ स्पैन बहुत वेरी करता है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया का सिर्फ घंटों तक होता है, किसी वो 2 घंटे जीते हैं. कुछ एनिमल्स का होता है 70 साल, जैसे एलिफेंट. ह्यूमंस का होता है अराउंड 100 साल, 90 साल, इस तरह से होता है. कुछ ट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिसलकोन पाइन ट्री, उसका जो लाइफ स्पैन है वो 5500 साल है. इतना लंबा लाइफ स्पैन है. तो ये बहुत वेरी करता है, और पर लास्ट में सबको जाके मरना होता है, ठीक है. सो दिस इज रिटन इन योर बुक. एवरी ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली डाइज एट द एंड ऑफ इट्स साइकिल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिज्म ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग things. Now there is a category known as virus. So virus are the organism that show characteristics of both living and non-living. They grow and multiply only when they enter a living cell, and outside the living cell they are dead, right? So viruses can cause chickenpox, measles, flu and many other diseases. So they cause many diseases in plants also. So let's deal with this topic in Hindi. तो कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि बाउंड्री पे होते हैं, जिंदा और मुर्दा ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो बाउंड्री होती है उसमें वो लाए करते हैं, जैसे कि वायरस, ठीक है. तो वायरस क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से नहीं देखे जा सकते, ठीक है, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो क्या होता है कि अगर ये है ना किसी सेल के अंदर हो, किसी लिविंग सेल के अंदर हो, तो ये ग्रो भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, इन्वेड भी करेंगे और इन्फेक्ट भी करेंगे. यानी कि बढ़ेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, और अपना साइज़ बढ़ाएंगे, अपनी हर तरह से ग्रोथ करेंगे. उसके बाद जिस बॉडी के अंदर है वो उस बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे, उसमें डिसीज़ेज़ भी फैलाएंगे, ठीक है. तो सिमिलरली ये एनिमल्स के साथ करते हैं और ये प्लांट्स के साथ भी करते हैं. लेकिन अगर ये हमारी बॉडी के बाहर हो या किसी भी प्लांट की बॉडी के बाहर हो तो ये मरे हुए होते हैं, मतलब ये कोई फंक्शन शो नहीं करते, कुछ नहीं शो करते, एकदम डेड होते हैं. लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, राइट. अब नाउ दे कॉज वेरियस डिसीजेज़. बहुत सारी डिसीज़ इनकी वजह से होती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स से जो माता निकलती है ना, बड़ी माता, छोटी माता, ये सब वायरस की वजह से निकलती हैं. मीजल्स, फ्लू, ये जो स्वाइन फ्लू का भी हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू हो गया है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है. स्वाइन फ्लू कौन से वायरस की वजह से होता है, H1N1. इन्फोबिट में दिया हुआ है, ये करना है लर्न, ठीक है. H1N1 में होता है. और जैसे बहुत सारी बाकी डिसीज़ भी होती हैं, जैसे कि जो कॉमन कोल्ड है, मुझे ज़ुकाम होता है, ये वायरस की वजह से होता है, राइट. सो दे ऑल्सो कॉज वेरियस डिसीजेज इन प्लांट्स में भी बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जो वायरस कॉज करते हैं. नाउ with this we have completely end your chapter and syllabus also. Hope you have enjoyed studying, right? And be ready for your half yearly examination. I have already sent you all the videos and we have covered up almost all the chapters. We have revised all the chapters, but still if you have any doubt then you are free to ask me. That is till Wednesday. Ask me till Wednesday about any doubt, whatever you are facing, you are not able to understand. If you are getting any inconvenience in doing something or memorizing something, just ask me. I'll make it available to you. I'll resend the video links of all the chapters. Good luck, take care.